Assalamu alaikum dear students. This is me Said Shazia, your concerned physics teacher. Today I am going to deliver my second lecture on motion and time. Our today's topic is time. What is time? And our second topic we will try to cover in this lecture is simple pendulum. I hope all the students are healthy and are enjoying the lectures. Let us start our today's lecture, which is about simple pendulum. So let us first talk about time. Time, what is time? Time is a physical quantity that indicates the progress from past to present, or we can define time is that which the clock reads. So here we are using this time, or we are discussing this time in case of how we can define the motion of a simple pendulum. So here measuring time will have a concern with the time in simple pendulum. Time is a physical quantity whose SI unit is second. So there are many events in nature that repeat after a time interval. For example, morning, the rising of sun; day and night, the time between the sunrise and sunset; month ऐसे होता है टाइम बिटवीन टू न्यू मून्स। ईयर हमारे पास एक टाइम का यूनिट होता है, दैट इज टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। Time measuring devices are clocks. Clocks use the concept of periodic motion to measure time. It means that it uses motion that repeats itself in equal amounts of time. There are different types of time measuring devices. ये क्लॉक होती है उसमें जो कौन सी मोशन होती है, क्लॉक के हैंड्स जो होते हैं वो ऑलवेज किस मोशन में होते हैं, पीरियोडिक मोशन में, या हम कहेंगे क्लॉक जो है वो वर्क करती है ऑन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो वाली मोशन होती है दैट रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम। द डिफरेंट types of measuring devices. Types of measuring devices are here shown. First is sundial. It is that clock which uses the position of sun to depict time. It uses the position of the sun to depict time. So as its name indicates is sundial, that is it works with the position of the sun. Second is sand clock, और इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं hourglass. ठीक है, it is sand clock or glass. It uses sand to measure time. This clock uses sand to measure time. This is water clock. It uses water to measure time. You might have seen this type of clock. This is known as pendulum clock. It uses a pendulum to measure time. Inside this watch there is a pendulum which works on periodic motion. So this clock works on the periodic motion of the simple pendulum. इसको हम बोलते हैं pendulum clock. Next is quartz clock. ये वाली क्लॉक आप सबने देखी होगी. इस क्लॉक में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है विच वर्क्स विद द हेल्प ऑफ सेल्स. ये वाली क्लॉक जो होती है ये हमें देती है एक्यूरेट टाइम. ठीक है, quartz clock जो होती हैं it consists of an electric circuit that works with the help of cells. They provide us accurate time. Now we will discuss the periodic motion of a simple pendulum. Periodic motion of simple pendulum. This is simple pendulum. ठीक है, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ये जो simple pendulum में होता है, ठीक है, एक बॉल जैसी अटैच होती है. ठीक है, एक यहाँ पे एक स्ट्रिंग है. ठीक है, इसके साथ एक बॉल अटैच्ड है, इसके साथ एक बॉल अटैच्ड है. ठीक है, ये स्ट्रिंग है. ठीक है, ये जब हम इस स्ट्रिंग पे इस बॉल पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉल कहाँ से, इस पोजीशन को हम बोलते हैं जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, पोजीशन ए जो है इसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं. ठीक है, जब इस मीन पोजीशन से क्या हो फोर्स अप्लाई किया तो ये
बॉल जो है ये मेन पोजीशन से कहाँ मूव होती है, पोजीशन बी तक। इस पोजीशन को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। फिर ये बी से वापस आके पॉइंट ए पे पहुंचते हैं, इसको हम फिर से मेन पोजीशन ही कहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ये पॉइंट सी की ओर जाती है, सी को हम एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पोजीशंस आई, वन इज मेन पोजीशन, अनदर इज एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। पोजीशन बी जो है ये भी है एक्सट्रीम पोजीशन, और पोजीशन सी जो है ये भी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। दिस फिगर शोज द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये जो फिगर है ये हमें सिंपली दिखाती है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो है इसकी मेन पोजीशन जो होती है पोजीशन ए है, ये यहाँ से पोजीशन बी पे जाता है, देन इट कम्स बैक टू द पोजीशन ए, देन गोज टू पोजीशन सी, देन कम्स बैक टू ए, देन गोज बी, ठीक है। दिस इज पीरियोडिक मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अब इस वाली फिगर में देखो, दिस इज द रिजिड सपोर्ट जिसके साथ ये बॉब जो है या मेटल बॉल जो है अटैच्ड है, ठीक है। दिस इज द लॉन्ग थ्रेड और इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। दिस वन इज द रिजिड सपोर्ट, ठीक है। ये जो इसमें एक स्ट्रिंग सी अटैच होती है बॉब के साथ, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग थ्रेड, और दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है। ये जो है इसको हम बोलते हैं बॉब ऑफ द पेंडुलम। ये जो होती है एक मेटालिक बॉल होती है, ठीक है। ये एक मेटल बॉल होती है, ठीक है। This simple pendulum contains a bob. It is a metallic ball or a stone which is suspended from a rigid stand with the help of a thread. Oscillatory motion. ऑसिलेटरी मोशन जो होती है वो होती है टू एंड फ्रो मोशन, या जिसको हम बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। वो ये जो पेंडुलम इसमें है ये यही मोशन दिखाता है, ऑसिलेटरी मोशन, दैट इज टू एंड फ्रो। इट गोज फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, देन कम्स बैक फ्रॉम पोजीशन ए टू B to A. This is to and fro motion. Oscillatory motion, यहाँ पे oscillatory motion किसकी होती है, bob. The bob of the pendulum does move from the center, that is mean position of the pendulum, to its extreme positions on both the sides. पहले क्या करता है ये बॉब, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाता है, दैट मीन्स फिर वहाँ से क्या आता है, पोजीशन बी से पोजीशन ए, दैट मीन्स ये पोजीशन ए से पोजीशन बी तक उसने किया बैक एंड फोर्थ मोशन। फिर पोजीशन ए से पोजीशन सी तक जाता है, सी से वापस कहाँ तक आता है, ए तक, दैट मीन्स ए और सी के बीच में भी बैक एंड फोर्थ मोशन होती है। दैट मीन्स ये पेंडुलम जो है इट expresses or it defines oscillatory motion from mean position to both of its extreme positions on both the sides, ठीक है। ये जो ए बी और सी जो है इनको हम एक्सट्रीम पोजिशंस बोलते हैं, ए जो है इसको हम मीन पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। ऑसिलेशन when the bob moves from its center, that is mean position, to its extreme ends, it is said to complete one oscillation. जब बॉब ये जो है बॉल इसमें ये जो मूव करता है from its mean position to its extreme ends, तो हम बोलते हैं इसने एक वन ऑसिलेशन कंप्लीट की। दैट मीन्स जब बॉब ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट बी पे पहुंचा, फिर बी से ए पे आया, ए से सी पे गया, फिर सी से वापस कहाँ आया, ए पे, दैट मीन्स हम कहेंगे कि इसने क्या किया, इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट की। यहाँ पे ये देखो, व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम इट्स सेंटर मीन पोजीशन टू इट्स एक्सट्रीम एंड्स, इट कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, व्हाट डू वी मीन बाय टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम? टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज टाइम टेकन बाय द पेंडुलम ऑफ द बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे दैट इज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। हमने बोला टाइम पीरियड जो होता है इट इज टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। इट इज टाइम टेकन, दैट मीन्स टाइम पीरियड जो है इट इज टाइम। टाइम किस में हम मेजर करते हैं, सेकेंड्स में। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, सो टाइम पीरियड का भी ऐसा यूनिट जो आएगा वो क्या होगा, सेकेंड। इसके बाकी यूनिट्स भी हैं लाइक मिनट और एक्स्ट्रा, ठीक है। स्पीड हम मेजर करते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो स्पीड का यूनिट जो आएगा वो आएगा मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। पे हमने देखा जो स्पीड है इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन मोस्टली फॉर लार्ज डिस्टेंस वी यूज किलोमीटर पर आवर। हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड? देखो 1 किलोमीटर जो होता है वो कितने मीटर्स के बराबर होता है, 1000 मीटर्स, ठीक है। एक आवर ऐसे ही हमने रखा, ठीक है। 1000 मीटर्स और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, ठीक है।
फिर 60 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में कितने, सॉरी आई मीन एक मिनट में, ठीक है, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। यही हमने यहाँ पे की, हमने इन 60 सेकेंड 60 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। दैट मीन्स अगर एक मिनट में 60 सेकेंड्स हैं तो 60 मिनट्स में 3600 सेकेंड्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरोस और 2 जीरोस कैंसिल, ठीक है। ये आएगा 10 डिवाइड बाई 36, दैट इज़ 1 डिवाइड बाई 3.6। अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, डिवाइड बाई 3.6, ठीक है। तो हमें उन किलोमीटर पर आवर को किससे डिवाइड करना है, 3.6 से, वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अगर हमें मीटर पर सेकेंड ही किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है बाय मीटर पर दिस 3.6, ठीक है। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखेंगे ये इंस्ट्रूमेंट्स जो आप लोगों ने देखे होंगे। स्पीडोमीटर क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स सच एज कार्स एंड ट्रक्स विच मेजर्स द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। इसलिए मैंने आपको बोला स्पीड का दूसरा यूनिट भी है, दैट इज़ किलोमीटर पर आवर। हाउ वी कन्वर्ट इट, ये हमने ऊपर देखा। अब हम इसमें बता रहे हैं स्पीडोमीटर। व्हाट इज स्पीडोमीटर, इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़, आपने देखा होगा कार्स में लगा होता है, ट्रक्स में। इट इज़ यूज टू मेजर स्पीड, लेकिन किस में मेजर करता है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ऐसे ओडोमीटर होता है इट इज़ अ डिवाइस विच मेजर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल इन मीटर्स और किलोमीटर्स। ये एक डिवाइस होता है जो डिस्टेंस, हमने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये वही दिखाता है, ठीक है। ये किस में मेजर होता है, इन ईदर मीटर्स और kilometers. So this was all for today. Thank you. Have a fruitful day ahead and also a fruitful lecture.